पूरे घर को हिला सकती है, पूरे घर की बैंड बजा सकती है। कि मैं जो भी करता हूँ मैं मुंह पे बोल के करता हूँ, दैट डजंट मेक इट राइट। तो आई थिंक निशांत प्लेड इट वेरी वेल, बिकॉज उसको पता है कि वर्ड्स को कैसे जंबल करते हैं। प्रतीक केम अप और वो मेरे ऊपर चढ़ रहा था और मुझे बॉडी वेट से पुश करने की कोशिश कर रहा था। हम सब हाथ ही उठा देते क्योंकि हम लोग वहां पे आए हैं चिल करने, वेकेशन करने, टास्क करने, नहीं नॉट टू कम्पीट। हम लोग एक काम करते सब उठा के, क्योंकि हमारे पास घर में पूल नहीं, वो गटर था। हम लोग जो भी सामान आता था हम सब उस पूल में फेंक देते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि गाइस, इस पूल में हम लोग को स्विमिंग करनी है, तुम लोग इसको गटर की तरह क्यों यूज कर रहे हो? Hi. How are you? I'm good, I'm amazing, never been better. Okay, so hi. Welcome to Tele Reporter. सबसे पहले तो Nishan. And Thank how you has so much for life having me. after Big Boss been? We would really like to know that. Life after Big Boss has been amazing. Honestly, with the amount of love and support I've received from all the people in this country, from all the celebs who didn't even know me, I think I feel like the king. I entered the house a king. My last task, I was crowned a king. I left a king, and when I came out, the audience made me feel like a king. So I think I feel like the king Right. now. Right. Okay. Talking about celebrities, Zishan, not just common people. मतलब लोगों ने तो आपके फैंस ने तो खैर आपको सपोर्ट किया ही है बहुत ज्यादा, लेकिन इतने सारे सेलिब्रिटीज भी आगे आए आपको आपके सपोर्ट में. गौहर खान came in support of you. Kushal came in support of you. Yeah. Yeah, you were So I saying was Gawhar saying Khan, कि Kushal Kushal Tandon. came in support of you. Kamya came in support of you. Gauhar came in support of you. तो वो कैसा लगा? बिकॉज क्या आप पहले से उन्हें जानते थे, कभी मिले थे? कैसा लगा when you came to know Uh, outside that there are so many people supporting you? no. Honestly, I hadn't met them. Obviously, I knew them, and I'm sure they didn't know me. But Gohar, I know everyone. Like I kept, and if I'm missing out on someone, I'm really sorry. But I know for a fact, Gohar came, supported me. Kushal supported me. Kamya supported me. Suyash supported me. Kishwar Yes. supported me. And yeah, like the amount of love I received from them, like I said, I felt like the king, and I cannot thank them enough because honestly, they are like they're like some really amazing people who have worked really hard and achieved like that name, and for them to stand up for me. I think it was a very big deal for me. I couldn't Yes. believe it that all these people who don't know me are coming up, standing for me, giving me so much love. And yes, I cannot thank them enough. I cannot. In fact, not only them, all my fans, people who weren't my fans, people the audience who was watching the show, they also came in support of me. They started giving me so much love. So, like I said, thank you feels like a very small word. If I could thank them properly, I would want to hug each and every one tight and give them a big kiss and tell them, thank you. You have no idea, irrespective of, everything that happened. You have no idea how you've made me feel, and I really feel so happy because when I had come out of the house I was very confused, and I couldn't understand ke, kya, what, how, when, what's going on. But Right. when I saw that the amount of love and everything that I've received, I was like, wow, I can't believe it. Like, I feel so good, so freaking good. And yeah, thank you seems like a very small word. If I could do something for each and every one of them, I would. If I even Deepak Thakur came out for me, Manu Right. Punjabi Right. came out, Yes. spoke for Yes. me. Yes. So yeah, like now that I sit, I can go on with the list. Like I kept a tab of every person who came out in support of me, for me, sorry. And all I want to say is thank you so much, guys. And I would really want to meet you guys and hug you all tight and kiss you all and tell you all thank you for making me feel so special, and thank you so much for all the love and support that you guys have given me. Thank you so much.
Zishan, talking about the incident, what exactly happened between you and Pratik? That because from the point of view that we saw, violence was there both the ways. If it was violence at all, so it was both the ways. So what exactly happened that आपके against लिया गया decision and Pratik को let go किया गया? See, honestly, I have no clue. ये show 24/7 live चल रहा है. I think the audience can see everything. तो वो हर बारीकी notice करते हैं, and they know what is going on and what is right and what is wrong. So I leave that judgment completely to them. If they say I am wrong, I am wrong. I'll take it with a pinch of salt. If they think I am right, I am right. And जहाँ तक मुझे पता है, I have been acing tasks ever since the first week. And Absolutely. Exactly. And right now also अगर आप वापस footage उठा के देखेंगे तो I was focused on the task and the other two Nishant and Pratik were not focused on the task. उनका मेरी strategy हमेशा ये रहती थी कि ये task है, ये rules follow करने हैं and ace it. Give it your all and give it your 100% and more and win the task, ace the task. तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी स्ट्रैटेजी उन्हें कहीं अपने आप पे भरोसा नहीं था कि वो जीत पाएंगे टास्क को फेयर तरीके से. तो दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द टास्क की प्रॉपर्टी ओनली. और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हो रहा था कि वो लोग टास्क की प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब उनको लगता था. तो आई वाज लाइक यार ये कैसी हरकत है. एक काम करते हैं, हम सब हाथ ही उठा देते हैं क्योंकि हम लोग वहां पे आए हैं चिल करने, वेकेशन करने, टास्क करने नहीं, नॉट टू कम्पीट. हम लोग जब भी बिग बॉस हमारे लिए कुछ भी सामान भेजेंगे टास्क के, हम लोग एक काम करते सब उठा के, क्योंकि हमारे पास घर में पूल नहीं, वो गटर था. हम लोग जो भी सामान आता था हम सब उस पूल में फेंक देते थे. मुझे ऐसा लगता था कि गाइस इस पूल में हम लोग को स्विमिंग करनी है, तुम लोग इसको गटर की तरह क्यों यूज कर रहे हो. जो भी सामान आता है सब पेंट गया उसके अंदर, वो ब्लॉक्स गए, वो बड़े बड़े जो डेस्क थे वो चले गए, फ्लैग्स जा रहे हैं, हर चीज जा रही है उसके अंदर, पूल के अंदर. तो आई वाज लाइक यार ये पूल को ऐसे क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम लोग. बट लाइक आई सेड, जब मैंने निशांत के हाथ से वो फ्लैग्स छीने भी, मेरा फोकस था टास्क पे, उनका नहीं था. और तभी भी मैंने उसके हाथ से वो फ्लैग्स छीन के मैं अपना टास्क करने गया था, जब मुझे तभी भी पीछे से पकड़ के फेंका गया. मुझे वापस जब मैंने तभी भी मैंने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया. मैंने जाके फ्लैग्स अपने टीममेट को दिए. जब मैं टर्न हुआ तो मुझे 2 लोगों ने धक्का दिया. दैट इज व्हेन आई रिएक्टेड. तो I did not start any action. My reaction was to their action. उसके बाद भी मैं शांत हो गया था and I was trying to protect the white board जिस पे हमने nail paint से लिखा था. And तभी भी मैं उसके सामने खड़ा हो गया था. तो प्रतीक came up और वो मेरे ऊपर चढ़ रहा था और मुझे body weight से push करने की कोशिश कर रहा था. तभी भी I was focused on doing that task और तभी भी मैंने उसको धक्का दिया कि दूर रह, task कर. तो I know for a fact कि मेरा ध्यान टास्क पर था. I cannot say the same for the other two, but obviously मैं कौन होता हूँ सही या गलत बोलने वाला. I think audience को सभी दिख रहा है and I think they are the true judges क्योंकि उनके verdict से बढ़कर कुछ नहीं है, उनकी आवाज से बढ़कर कुछ नहीं है. Zishan, talking about निशांत, प्रतीक के साथ तो खैर आपका डे 1 से ही थोड़ा सा खट्टा मीठा इक्वेशन देखने को मिला था. बट टॉकिंग अबाउट निशांत, मैं ये जानना चाहूंगी कि उसी दिन, आई थिंक एक दिन पहले ही, जब घर वालों को चांस मिला था किसी एक कनेक्शन को सेव करने का, तो आपने निशांत का नाम लिया था, निशांत और मूस का नाम लिया था. तो जब ये इंसिडेंट हुआ, सो डिड यू फील बैड, डिड यू रिग्रेट योर डिसीजन, डिड यू फील चीटेड? No, I did not regret my decision because obviously I knew that it doesn't make a difference. क्योंकि पूरे घर वाले और जहाँ तक मुझे चाहिए था, मुझे तो गाबा का ही नाम लेना था. I did not want to take anyone else's name. Exactly. But जब मैंने देखा कि कोई भी घर वाला, no matter how good Gaba is, there was no one standing in support for Gaba, to save Gaba. Right. तो तभी मैंने आके गाबा को बोला, मैंने बोला गाबा हमारे पास वोट्स नहीं है. And I think the best, because obviously मैं तो safe ही हूँ, and I think the best move right now strategically would be to do a favor on Nishant and have him owe you one. और मैं गावा को भी यही चीज समझा रहा था. गावा वाज लाइक नहीं यार, मुझे अपने आप को बचाने का एक तरीका ढूंढना है, मैं जाके सबसे. तो मैंने उसको तभी भी तरीके दिए. मैंने बोला जा वोट्स जमा कर, टेल मी, अगर if there are people supporting you,
I'll write your name, but it doesn't matter if I write your name, they're just simply gonna tear it. So I was like, and obviously my connection Divya was in support of Nishant. तो आई वाज लाइक दिव्या को तो निशांत का ही नाम लिखना है, एंड उसका वैलिड रीजन ये है कि पूरे घर वाले ही निशांत के सपोर्ट में है, एंड मुझे तो तेरा ही नाम लिखना है, बट व्हाट डू आई टेल हर कि भाई नहीं हम राइट लोग मिलिंद का नाम लिखेंगे, एंड देन वो फट जाएगा. So I was like, bro, we need to come up with a better strategy. But at the end, वही हुआ. No one was ready to support Gaba. I was the only one supporting him. And obviously, जब votes नहीं मिल रहे थे, तो I had to go with Divya's decision only. तो I was like, ठीक है भाई, ये कर लेते. But then I was giving him strategies कि ऐसा करते, वैसा कर दे, ये कर दे, वो कर दे. And in the end, निशांत बच गया. So I think Nishant played it very well because उसको पता है कि words को कैसे जंबल करते हैं, and कैसे घर वालों को अपने साइड पे लाते हैं गलत काम करते हुए भी. मैं जीशान आपसे ये जानना चाहूंगी, पर्सनली जानना चाहूंगी, जब हमारे भी डिस्कशंस होते हैं बिग बॉस को लेकर, तो मतलब हमें भी ये चीज लगती है कि is there any groupism happening in the Big Boss house? Is it are people favoring Nishant and Moose because they are coming out strong to the audience? What is it? Because बाहर जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, हमारे लिए people are all out and supporting Milind and Akshara and Divya also for that matter. तो ये घर के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि इवन दो बाहर लोग ऑडियंस सपोर्ट कर रही है मिलिंद, अक्षरा को, दिव्या को, घर के अंदर सारे के सारे चाहते हुए ना चाहते हुए निशांत और मूस के आगे झुक जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस बारे में आप? क्योंकि व्हाट हैपेंस इज मैं और गाबा यही चीज डिस्कस कर रहे थे. मैंने गाबा को बोला, गाबा यार, अगर कोई दिन मैं एक चाकू उठाऊं और मैं तुझे बोलूं गाबा आई एम गोना स्टैब यू एंड किल यू विद इट, एंड पर मैं तेरे मुंह पे तेरे को बोल के कर रहा हूँ, तो प्लीज बुरा मत मानना. तो तू क्या बोलेगा मुझे कि अरे थैंक्स यार, एटलीस्ट तूने मेरे मुंह पे बोल के मुझे चाकू मार दिया. मैंने बोला गाबा यही तो चीज वो कर रहा है निशांत, कि मैं जो भी करता हूँ मैं मुंह पे बोल के करता हूँ. दैट डजंट मेक इट राइट. अ रॉन्ग एक्शन इज अ रॉन्ग एक्शन. आप मुंह पे बोल के कर रहे हो गलत चीज, तो वो उसको सही नहीं बना देता है. बट लोगों को निशांत की वो क्वालिटी बड़ी पसंद आई कि निशांत चाकू मार देता है मुंह पे बोल के. तो एवरीवन स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम. प्लस घर के अंदर हमें बार बार कहा जा रहा था कि ऑडियंस ने निशांत और मूज को सपोर्ट किया है, ऑडियंस निशांत और मूज को बहुत फेवर कर रही है, ये वो. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी लोगों के दिमाग पे खेल रही थी बात के अरे ऑडियंस सपोर्ट कर रही है तो वी शुड आल्सो टैग अलोंग विद देम, शायद ऑडियंस हमको भी पसंद करेगी. बट आई नेवर बिलीव्ड इन दैट स्ट्रेटजी. आई वाज लाइक the audience can decide who they want to support and who they don't. I am going to be who I am, and I'm going to play the game according to what I think is right. तो मैं और गाबा ने हमेशा वही किया है. वी नेवर उनके साथ जाके कुछ अच्छा बनने की कोशिश की है कि यार शायद ऑडियंस हमको भी सपोर्ट कर लेगा. जब मैं बाहर आया, जब मैंने ऑडियंस का सपोर्ट देखा मेरे तरफ इतना, गाबा की तरफ इतना, आई वाज मोर देन हैप्पी. आई वाज लाइक बस यार यही तो करने गया था. आई थिंक जो असली ट्रॉफी है वो मैं ही आधे इसमें लेके निकल गया, बिकॉज द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम द पीपल, आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ इट. और जैसे ही मैं अंदर जाने से पहले मैंने एक चीज कही थी कि अगर बिग बॉस सीजन 15 ओटीटी याद किया जाएगा तो वो जीशान खान के लिए याद किया जाएगा, एंड आई थिंक आई अचीव दैट. तो यही मेरी ट्रॉफी थी. अब अंदर जो भी हो रहा है, लड़ो मरो, जो करना है करो, मुंह पे बोल के मार दो एक दूसरों को. बट आई थिंक जो असली ट्रॉफी थी तो वो तो मैं ही लेके आ गया. इट डजंट मैटर हु लिव्स दैट मटेरियल ट्रॉफी. जी ओके, लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी जीशान आपसे कि दिव्या की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको कि उन्हें भी अंदर आपके जाने के बाद स्पेशली लोगों ने कॉर्नर कर दिया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साथ ही जीशान को हम वापस बिग बॉस ओटीटी में हमें देखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिकॉज फैंस, आपके फैंस स्पेशली बहुत ज्यादा चाहते हैं कि आप वापस कम बैक करें. तो इन दोनों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे और अपने फैंस के लिए आखिर में क्या कहना चाहेंगे? तो एक सिंपल सी चीज है. लोगों को घर के अंदर लग रहा है कि वो दिव्या को कॉर्नर कर सकते हैं, बट आई नो दिव्या मेरी कनेक्शन थी स्टार्ट से. तो आई थिंक आई नो कि शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, और वो अकेले ही पूरे घर को हिला सकती है, पूरे घर की बैंड बजा सकती है.
तो अगर लोगों को लग रहा है कि हम दिव्या को कॉर्नर कर देंगे तो वो बहुत ही गलत फहमी में रह रहे हैं। आई थिंक उसको नहीं किया जा सकता कॉर्नर। शी इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग वुमन। एंड जहाँ तक मेरी बात हो जाती है वेदर आई एंटर द बिग बॉस हाउस और नो, आई थिंक आई वुड लव टू एंटर द बिग बॉस हाउस, बट as I've said in my other interviews, not without my self respect. And if people want to see me in the house, प्लीज गाइस आवाज करो। आपकी आवाज से बढ़कर कुछ नहीं है। डोंट लेट वो आवाज को दबने मत दो। डोंट गिव अप होप। आप अगर आवाज करते रहोगे तो मैं क्या, हर एक को आपकी आवाज सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि जनता की आवाज से कुछ नहीं बढ़कर कुछ राइट नहीं होता है। तो आई राइट। थिंक करते रहो, आवाज करते रहो टिल आई डोंट गेट बैक इनटू द हाउस। Okay, sorry, one more thing I wanted to ask you. Last question, Zishan. क्या आपको लगता है कि करण जौहर जो है उन्होंने भी आपको टारगेट किया था? बिकॉज उस वक्त जब आपको डांट पड़ी थी, जब अक्षरा और आपके मैटर पर, तब एवरीबडी एक्सपेक्टेड के इस वीक तो अक्षरा को करण जौहर डांटने वाले हैं, या he's going to bash her, but it turned out to be उल्टा, and वो फेमिनिज्म वाली चीजें आ गई उसमें। उस पर भी काफी ज्यादा आपके फैंस ने रिवॉल्ट किया था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्सपेक्ट तो मैंने भी यही किया था कि डांट अक्षरा को पड़ेगी, बट लाइक आई सेड, ये घर ही इतना स्ट्रेसफुल है और यहाँ पर हर सेकंड में चीजें बदलती है। तो आई थिंक किससे डांट पड़ने वाली है वो भी बदल सकती है। बट द थिंग इज दैट लाइक आई सेड, ये शो का एक फॉर्मेट ही ऐसा है कि दे मेक थिंग्स वेरी स्ट्रेसफुल। और आई थिंक ना कि सिर्फ कंटेस्टेंट के लिए बट क्रू के लिए, ऑल द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द शो, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज हो जाती है। एंड आई थिंक जो पॉइंट्स थे, आई थिंक कहीं ना कहीं करण फील्स a lot, like very strongly for them. And maybe because of that he thought कि I was going wrong somewhere. I think कि अगर मुझे मेरी side of the story पेश करने का मौका रखने का मिलता, मौका, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली अगर मुझे वो मिलता तो आई थिंक शायद उनका परसेप्शन मेरे बारे में कुछ और होता। बट ठीक है, हो जाता है यार, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल होता है। आई डोंट ब्लेम हिम फॉर एनीथिंग। आई थिंक ही डिड हिज जॉब एज अ होस्ट, आई डिड माय जॉब एज अ कंटेस्टेंट। बाकी तो जितनी भी चीजें हो रही है वो जनता को दिख रही है, तो उन्हें पता है क्या सही है और क्या गलत। Thank you so much, Zishan. It was lovely talking to you, and we would really, really, from the bottom of our hearts, want to see you back in the Big Boss OTT house. All the तो best. और आवाज करो। All the best, Zishan. Thank you. Thank you so much. It's so nice talking to you. Thank you so Same much. here, Zishan. Thank you. Bye.